Welcome, dear learners. Today we delve into the majestic and devastating world of King Lear, one of the Shakespeare's most psychological, intricate, and emotionally resonant tragedies. So, in our previous lecture, we have discussed about the play, about the playwright, and the characters. So, in this class, we will discuss about the acts. So, our focus will remain exclusively on Act 1, the foundation stone upon which the entire tragedy is built. This act is not just the beginning of Lear's downfall. It is a crucible of crucial decisions, veiled truths, and irreversible consequences. Through rhetoric and ritual, deception and duty, Shakespeare sets the stage for a kingdom that is about to unravel both in the political realm and within the human soul. So, we will examine each scene with a sharp lens from the ceremonial division of the kingdom to the crackling tension between Lear and his three daughters, and the machinations of Edmund, whose villainy begins to take roots. Every character that enters in Act 1 brings with them a piece of tragedy to come. So, let's now explore this act, not just an opening chapter but as the pearls of the play, where themes like blindness, power, betrayal, and identity begin to unfold in Shakespeare's unmistakably poetic voice. So, this is all about the act. It consists 5 scenes. The central conflict initiated, which is Lear's abdications of power and the disastrous test of love. Major themes of this act is authority versus chaos, appearance versus reality, natural order versus human will, loyalty and betrayal, fate and free will. So these are the themes which will be discussed in this act. So this act consists 5 scenes. So the scene 1, which is the opening scene of the play, which is about Lear's court, the love test. So if we talk about the plot, King Lear gathers his court and announces his and he announces his decision to divide his kingdom among his 3 daughters. He introduces a love test where each daughter must declare how much she loves him. So the elder two daughters, Goneril and Regan, the elder daughters, offer grand and poetic flattery. आपके पास प्ले का टेक्स्ट होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही कैरेक्टर, क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि ये दोनों ही कैरेक्टर काफ़ी करप्ट है, काफ़ी ईविल है. तो ये जब इनके फादर इनसे पूछते हैं कि हाउ मच दे लव हिम, तो दे ऑफर ग्रैंड एंड पोएटिक फ्लैटरी. But the Cordelia, the youngest one, refuses to flatter her father, instead offers a measured, sincere declaration. She said, "Unhappy that I am, I can't heave my heart into my mouth." तो इस बात से ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है. Lear, angered by her honesty, disinherits her, banishes her. There is one more character, Earl of Kent, intervenes
वार्निंग लियर ऑफ हिज मिस्टेक। तो लियर जो है उससे भी गुस्सा हो जाता है। एंड ही बैनिशेस केंट टू। देयर वॉज अ ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ही केम टू द कोर्ट ऑफ लियर with his proposal to marry Cordelia, the youngest daughter of King Lear. But when he saw that कि जो किंग लियर ने अपनी बेटी को डिसइनहेरिट कर दिया है, बैनिश कर दिया है, तो ही withdraws his proposal to marry Cordelia. But one more person is there, King of France. मैंने previously भी आपको बताया था. He accepts her, praising her virtue, her inner virtue. So, Goneril and Regan, left alone, reveal their insincere intention. तो यहाँ पर जो सीन 1 है उसमें हम यही देखते हैं कि तीनों बेटियों से पूछा जाता है कि हाउ मच दे लव देयर फादर. दो जो डॉटर्स है दे नो हर फादर वेरी वेल ना, कि उसको वर्ड्स आउटर फ्लिटरी चाहिए, अच्छा बात सुननी है उसको उसके फादर के लिए, तो वो बोल देती हैं. ऑल्दो वो ऐसी है नहीं, बट उनको पता होता है कि ऐसे हम करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी, जो वेल्थ है अपने फादर की, किंगडम है, वो मिल जाएगी. वो करती हैं दोनों और दोनों को मिल जाती है. जो यंगेस्ट डॉटर है वो ऐसा नहीं करती है तो उसको नहीं मिलता है. अब यहाँ पर हमें थीम यहाँ पर दिखती है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. कि अपीयरेंस और रियलिटी में क्या मतलब क्या यहाँ पर ये थीम कैसे रिप्रेजेंट होता है. अपीयरेंस ये है कि दिखाने के लिए दोनों बेटियों ने ये दिखाया है कि दे आर वेरी जेनरस, दे आर वेरी काइंड, दे लव very much to their, मतलब they love their father very much. But reality is different. False words are rewarded in the first scene and truth is punished. जबकि इन तीनों बेटियों में तीसरी जो बेटी है कॉर्डेलिया, वही सच बोल रही है. बाकी ये जो दो हैं ये तो झूठ ही बोल रही हैं. बट रियलिटी को इग्नोर करके, अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस देकर, किंग लियर फॉल्स वर्ड्स को रिवॉर्ड करता है और ट्रुथ को पनिश करता है. पहला थीम तो यहाँ पर ये है. दूसरा है ईगो एंड ब्लाइंडनेस. किंग लियर की ये ईगो ही है, उसकी ब्लाइंडनेस ही है कि ही कन्फ्यूज़ेस फ्लैटरी विथ लव. वो फ्लैटरी को लव समझ रहा है और जो ट्रुथ है उसको वो डिसरेस्पेक्ट समझ रहा है. तो यहाँ पर ईगो भी है. इंसान में जब ईगो होता है ना तो उसके साथ ऐसा ही होता है. उसको जो चीज़ें उसको सुननी होती हैं या जिन चीज़ों को सुनकर वो खुश होता है उससे वो खुश हो जाता है और उसको वो रिवॉर्ड भी करता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो. तो यहाँ पर ये भी एक थीम है जो रिवील होता है. थर्ड वन इज़ नेचुरल ऑर्डर. सो डिसरप्शंस बिगिन विथ लियर्स अननेचुरल डिसीजन टू गिव अवे पावर. वो ये फ्लैटरी सुनकर, पोइटिक ऑफरिंग सुनकर, अपने पोइटिक प्रेस सुनकर अपनी दोनों बेटियों से, ये अपने सारे किंगडम, अपनी सारी वेल्थ, अपनी सारी पावर अपनी दोनों बेटियों में इक्वली डिवाइड कर देता है. और जो उसे एक्चुअल में लव करती है उसको बैनिश कर देता है, उसे डिसइनहेरिट कर देता है. तो यहाँ पर डिसरप्शन शुरू हो जाता है क्योंकि ये इसका एक अननेचुरल डिसीजन था और इसने अपनी सारी पावर खो दी है. अब मोटिव्स और सिंबल यहाँ पर ये है कि कॉर्डेलिया से जब वो पूछता है फादर कि वो उसको कितना प्यार करती है, तो सीन 1 में नथिंगनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोटिव है. नथिंगनेस, कॉर्डेलियाज नथिंग बिकम्स सेंट्रल. लियर सेज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नथिंगनेस इज़ अ सेंट्रल फिलोसफिकल मोटिव इन किंग लियर and its significance starts right from Act 1, Scene 1.
ये जो बात बोलता है ना, ये लियर बोलता है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग. तो लियर आस्क हिज डॉटर्स टू पब्लिकली declare how much they love him, expecting to be praised. Goneril and Regan do so with false eloquence, but Cordelia, his youngest and most truthful daughter, simply says she has nothing to say. Cordelia says she has nothing to say. तो इससे क्या होता है कि बिकॉज हर लव इज़ रियल, नॉट आर्टिफिशियल. तो लियर का जो ये नथिंग है, इट रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीव दैट अनलेस समथिंग इज सेड और शोन इट हैड नो वैल्यू. बट कॉर्डिलिया यहाँ पर साइलेंट रहती है. उसका साइलेंस, उसकी सिंप्लिटी चैलेंज करती है. हर नथिंग इज एक्चुअली एवरीथिंग. कॉर्डिलिया ने कहा नथिंग. उसका नथिंगनेस जो है वो एक्चुअली सब कुछ है. प्योरिटी है, ऑनेस्टी है, डिग्निटी है उसकी. जबकि लियर के लिए ये जो नथिंगनेस है, ये एम्प्टीनेस ऑफ फ्लैटरी है, ये फर्जिलिटी ऑफ पावर है जो कि उसने बिल्ड की है ऑन अपीयरेंस. जो मोटिव है नथिंग का, this moment sets up a most tragic irony. Lear begins by trying to divide everything, yet ends up with nothing. तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा सिंबल है कि ये एक आयरनी है कि उसने एवरीथिंग से शुरू किया था कि मैं सब कुछ बराबर बांट दूंगा, और लास्ट में उसके पास खुद भी कुछ नहीं बचता. नथिंग, लाइक नो पावर, नो होम, नो सैनिटी, नो डॉटर्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट नथिंगनेस. सेकेंड मोटिव है साइट एंड ब्लाइंडनेस. सो लियर फेल्स टू सी कॉर्डेलियाज ट्रुथ, एंड केंट कहता भी है सी बेटर लियर. मतलब वो उसको बोलता भी है कि आप बेटर है वो देखो, लेकिन वो अनएबल है वो ये देखने की. ही फेल टू सी कॉर्डेलियाज ट्रुथ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीन 1. हम कुछ फेमस कोट्स, इस मतलब ये जो डायलॉग्स हैं, हम इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो कि सीन 1 में है. हम पूरा प्ले तो यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स इसको हम डिस्कस कर सकते हैं. ये एक डायलॉग है जो कि लियर बोलता है, विच ऑफ यू शेल वी से डॉथ लव अस मोस्ट. ये कोट लियर की फ्लॉड थिंकिंग को दिखाता है, क्योंकि वो सोचता है कि लव जो है वो मेजरेबल है और उसका पब्लिक डिस्प्ले लॉयल्टी का प्रूफ है, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन लियर को ऐसा लगता है कि वो इससे अपनी बेटियों से इस तरह का क्वेश्चन पूछ के ये उनके प्यार को जज कर सकता है, मेजर कर सकता है. और पब्लिक डिस्प्ले करना, मतलब अगर आप अपने फादर को, अपने मदर को या अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो आपको पब्लिक डिस्प्ले आना चाहिए करना. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर ये लॉयल भी नहीं है, लॉयल्टी का प्रूफ नहीं है, डिसलॉयल्टी है. तो यहाँ पर इस डायलॉग के थ्रू एक जो मैंने आपको थीम बताया था, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, वो यहाँ से रिप्रेजेंट होता है. लियर यहाँ एक फादर के रूप में नहीं है, एक राजा के रूप में सोच रहा है, जिसे प्यार सिर्फ दिखावे के लिए चाहिए, असली समर्पण या असली डेडिकेशन उसको नहीं चाहिए. तो ये यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है. एक और ये जो डायलॉग है ये कॉर्डेलिया का है, ये अनहैप्पी दैट आई एम, आई कांट हीव माई हार्ट इन टू माई माउथ, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर no less. So here Cordelia speaks these words when she addresses her father, King Lear, who has demanded that his daughters tell him how much they love him before he divides his kingdom among them. ये जो लाइन है ना, आपको इस एक्ट 1 के सीन 1 में 90
हाँ 90 लाइन है ये, 90 से लेके 92 93 तक है ये। आप इसमें आपको मिल सकता है ये, मैं आपको बता देती हूँ। 90 से लेकर 93 तक है ये, एक्ट 1 सीन 1 में। ठीक है, आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा ये सब। सो इन कंट्रास्ट टू द एम्प्टी फ्लैटरी ऑफ Goneril and Regan, Cordelia offers her father a truthful evaluation of her love for him. वो ये देख चुकी होती है कि उसकी सिस्टर्स ने काफ़ी अच्छे से एग्जैजरेट करके अपना लव डिस्प्ले किया है। करने को तो वो भी कर सकती थी, बट शी डिसाइडेड टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हर फादर। तो Cordelia offers her father a truthful evaluation of her love for him. She loves him according to the bond. बॉन्ड क्या है उनका कि वो एक दूसरे, मतलब ये फादर और डॉटर हैं, यही इनका बॉन्ड है। दैट इज़ शी अंडरस्टैंड्स एंड एक्सेप्ट्स विदाउट क्वेश्चन हर ड्यूटी टू लव हिम एज अ फादर एंड अ किंग। एक बॉन्ड उनका ये भी है कि वो किंग है, एक बॉन्ड ये भी है कि वो उनका फादर है। सो Cordelia loves Lear better than her sisters do. This is true, but she is unable to heave her heart, मतलब to display her heart into her mouth, as her integrity prevents her from making a false declaration in order to gain his wealth. ये जो बात है ना, यही किंग ऑफ फ्रांस को बहुत पसंद आती है कि ये अपना हार्ट जो है वो अपने मुंह तक, बोल रही ना, आई कांट हीव माई हार्ट इन टू माई माउथ। तो दिस रिप्रेजेंट्स हर इंटेग्रिटी, एंड हर इंटेग्रिटी प्रिवेंट्स हर फ्रॉम मेकिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन in order to gain her father's wealth. But Lear's rage at what he perceived to be her lack of affection sets the tragedy in motion. Cordelia's refusal to flatter Lear then establishes her virtue and authenticity of her love while bringing about Lear's dreadful error of judgment. तो कॉर्डेलिया जो है वो ये कहना चाहती कि भाई उसका प्यार सच्चा है, लेकिन उसे शब्द में नहीं उतार सकती वो, अनलाइक हर सिस्टर्स हु आर मैनिपुलेटिव। तो यहाँ इस डायलॉग से हमको जो एक थीम था हमारा, ट्रुथ वर्सेस फ्लैटरी था ना यहाँ पर एक, अच्छा लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, बट ये भी एक यही अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इसी से मिलता जुलता है। ट्रुथ वर्सेस फ्लैटरी, साइलेंस एज स्ट्रेंथ, ये भी यहाँ रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक बेटी की सच्चाई जो है उसके लिए वो खामोशी से लड़ रही है। वो देखती है कि उसके फादर उसको डिसोन कर रहे हैं, स्टिल वो साइलेंट रहती है, और ये साइलेंस उसकी ऑनेस्टी का एक प्रूफ है कि भाई हाँ वो ऑनेस्ट है अपने। ऐसा नहीं है कि अब उसके फादर उसकी इस बार पहले उसने ऑनेस्टी दिखाई, फिर उसके फादर उससे गुस्सा हो गए, फिर उसने अपने फादर को फ्लेटर कर दिया, ये भी नहीं किया उसने। सो यहाँ पर ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट डायलॉग है, कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रॉथ, लियर बोलते हैं। ये लाइन जो है ना, लियर की ईगो और उसके एंगर को दिखाता है। वो खुद को ड्रैगन बोल रहा है, ड्रैगन कि मैं ड्रैगन हूँ, वो खुद को ड्रैगन से कंपेयर कर रहा है। और ये बात ये बोलता है केंट से, जब वो केंट उसको समझाता है ना कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसको बोलता है कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रॉथ, मतलब वो कह रहा है कि मैं ड्रैगन हूँ और मेरा गुस्सा बहुत ख़तरनाक है, तो मेरे गुस्से के बीच में मत आओ तुम, नहीं तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये लियर की ईगो, उसके प्राइड और गुस्से को दिखाता है। वो खुद को ड्रैगन से कंपेयर कर रहा है और वार्न कर रहा है केंट को नॉट टू इंटरफेयर। तो यहाँ पर एक थीम और यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, विच इज़ पावर वर्सेस ब्लाइंडनेस।
कि वो अपने अपने एक तरह से केंट उसका नौकर ही तो है, तो वो अपने नौकर को अपनी पावर दिखा रहा है। और वो अपनी ईगो के चलते इतना ब्लाइंड हो गया है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा। अगर उसे कोई समझा भी रहा है तो वो नहीं बात मान रहा है। सो लियर अपने गुस्से को सच से बड़ा समझता है, जिससे वो अपने सबसे वफादार लोगों को भी दूर कर देता है, लाइक कॉर्डेलिया, केंट, इन दोनों को ये दूर कर देता है अपने गुस्से की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से। नेक्स्ट डायलॉग ये है सी बेटर लियर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ केंट लियर से कह रहा है कि सच्चाई देखने की कैपेबिलिटी को पैदा करो तुम। तुम्हारे अंदर मतलब तुम राजा हो, हम सबके बड़े हो तुम, स्टिल यू डोंट हैव कैपेबिलिटीज टू शो द रियलिटी। यू कांट सी द रियलिटी। इट्स बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल। लियर यहाँ पर इमोशनली और मॉरली ब्लाइंड हो गया है। तो यहाँ पर एक और थीम दिखती है जो मैंने बताई थी ना, ब्लाइंडनेस वर्सेस रियलिटी एंड ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट। तो ये लाइन पूरे प्ले के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लियर देख तो रहा है पर समझ कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ हमको सीन 1 में कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। जैसे लियर, ये प्राउड है, इम्पल्सिव है, इगोइस्टिक है। ये इसने खुद ही अपना ट्रेजिक फॉल इनिशिएट किया है अपने डीड से, अपने एक्ट से। कॉर्डेलिया का यहाँ पर हमको दिखता है कि वो ऑनेस्ट है, मॉरल है, प्रिंसिपल्ड है। वो उसको इस बात का डर नहीं है कि वो बेचारी अब कहाँ जाएगी, या उसकी तो शादी भी नहीं हुई है अभी, मतलब अभी तक तो नहीं हुई थी ना शादी, तो उससे शादी कौन करेगा। और उसके फादर ने उसको डिसोन कर दिया, डिसइनहेरिट कर दिया है, बैनिश कर दिया है। और जो उसके लिए शादी का प्रपोज़ल लाया था कि ड्यूक ऑफ बर्गंडी, वो उसने भी मना कर दिया कि भाई अब मैं नहीं शादी करूँगा। अब वो क्या करेगी, नहीं, स्टिल वो प्रिंसिपल्ड रहती है और वो अपने कहे पर पक्की रहती है। केंट केंट का ही भी हमें एक कैरेक्टर पता चलता है यहाँ पर कि वो काफ़ी लॉयल है अपने मास्टर के लिए, अपने मास्टर को समझा रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। ब्रेव है, उसको डर नहीं लग रहा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड ही विलिंग टू रिस्क, ही इज़ रेडी टू विलिंग, मतलब ही विलिंग टू रिस्क बैनिशमेंट टू अपहोल्ड द ट्रूथ। उसको ये डर भी है कि भाई मुझे भी बैनिश कर दिया जाएगा, लेकिन उसका फिर भी ये विल है कि उसने रिस्क लिया और रिजल्ट यही हुआ कि उसको भी बैनिश किया गया है। गॉनर रीगन रीगन का भी हमें एक ही सेम करेक्टर दिखता है कि ये लड़कियां जो दोनों हैं, दोनों बेटियां जो है इसकी, ये कैलकुलेटिव हैं। इन्होंने कैलकुलेट कर लिया पूरा कि क्या बोलने से क्या मिल सकता है। अगर झूठ ही तो बोलना है, बदले में इतनी बड़ी वेल्थ मिल जाएगी, इतनी बड़ी किंगडम मिल जाएगी, क्या बुरा है, बोल दो। पावर हंगरिंग है ये, बहुत ज़्यादा इनको भूख है। एंड मास्क ऑफ लॉयल्टी, इनकी ये दोनों मास्क आके बैठी हैं लॉयल्टी का। ठीक है, अब ये सीन 2 है जिसमें हम ग्लॉसेस्टर के कैसल में है, जहाँ पर एडमेंट आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली एडमेंट यहाँ पर डिसेप्शन मतलब धोखा देगा ग्लॉसेस्टर को, सिमिलरली जैसे गॉनरेल और रीगन ने दिया है अपने फादर लियर को, ऐसे ये भी करेगा। ये सब प्लॉट में कहानी है ये। सो एडमेंट, द illegitimate son of Gloucester, soliloquizes about his hatred of social norms that favor legitimate birth। देखिए ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी मैनिपुलेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना विक्टिम भी है। अब ये इलेजिटिमेट है, इसका बर्थ मतलब ये अपने फादर और मदर के वेडलॉक से नहीं हुआ था इसका बर्थ, तो इसमें इसकी क्या गलती है। लेकिन सोसाइटी ने इसके साथ बुरा बिहेव किया होगा पास्ट में, तभी इसके मन में आया कि मैं रिवेंज लूँ, मैं अपने फादर जो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं उनका जो लेजिटिमेट सन है उससे मैं उन्हें दूर करूँ, ताकि मुझे वो प्रेफरेंस, मुझे वो इम्पोर्टेंस मिल सके। सो वो ये जो इसके मन में हेटर्ड है, हेटर्ड ऑफ सोशल नॉर्म्स दैट फेवर्स लेजिटिमेट बर्थ, ये कैसे आई, सोसाइटी ने तो इसे दी थी। ऑल्दो प्ले में ऐसा कुछ नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं अपने आप से ये बात बोल रही हूँ कि ऐसा इसके माइंड में क्यों आया।
क्योंकि सोशल नॉर्म्स ही ऐसे हैं कि लेजिटिमेट बर्थ को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर ये नरेट करता है कि इसको इस बात से कितनी हेट है। ही forges a letter that pretends Edgar plans to betray their father। मतलब ये, हाँ, ये गलत करता है कि इसको ऐसे कोई चीज़ फोर्ज नहीं करनी चाहिए थी, इसके साथ गलत हुआ है, सोसाइटी ने अगर इसके साथ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये भी पलट कर मतलब आंसर में, रिस्पॉन्ड में ये भी गलत करें। ग्लॉसेस्टर भी लियर के जैसा है काफ़ी हद तक। ये भी बहुत मैनिपुलेट हो जाता है और बिलीव कर लेता है कि ये जो लेटर है वो सच है, और वो एडगर को लिटरली कर्स करता है। तो यहाँ पर जो थीम है, ये कुछ थीम्स हैं जो यहाँ इस वाले सीन में हमको देखने को मिलती है। लेजिटिमेसी वर्सेस बास्टर्डी। तो यहाँ पर अपने जब ये एक्ट सीन 2 शुरू होता है, वहीं पर ही सबसे पहले एडमंड का ही पूरा उसी का ही पूरी कॉन्वर्सेशन है ग्लॉसेस्टर से, जिसमें ये चैलेंज करता है सोसाइटल वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा। इसमें ये बोलता भी है कि मैं क्यों, मुझे कमज़ोर माना जा रहा है क्योंकि मैं इलेजिटिमेट हूँ, क्यों इस तरह की चीज़ें हैं, बेसनेस क्या है, बास्टर्डीनेस क्या है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस करता है। आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप टेक्स्ट को ख़रीद भी सकते हैं, पेंगुइन एडिशन या कोई भी एडिशन, या आप ऑनलाइन भी PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब लेजिटिमेसी और बास्टर्डी, ये एक थीम है जहाँ पर एडमंड चैलेंज करता है सोसाइटल वैल्यूज़ को। डिसेप्शन एंड एम्बिशन। एडमंड यूजेस कनिंग टू राइज। धोखा देता है ये, इसको धोखा देना है, यही इसका एम्बिशन है कि ये एडगर को बिल्कुल रास्ते से हटा दे। तो ये थीम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है कि एडमंड जो है अपनी कनिंगनेस को यूज़ कर रहा है डिसेप्शन के लिए, अपने एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी पेरेंटल ब्लाइंडनेस दिखती है। लियर के बिल्कुल सिमिलरली ग्लॉसेस्टर भी सिर्फ अपीयरेंस से फूल बन जाता है। जैसे रीगन और गॉनरेल दोनों अपीयरेंस से रियलिटी पर भारी पड़ जाती हैं, ऐसे ही, और लियर उसको अपनी थर्ड डॉटर को बैनिश कर देता है। सिमिलरली ये भी कर देता है। He got manipulated by Edmund and believes the letter which is about कि जो एडगर है वो अपने फादर को धोखा देने का प्लान कर रहा है और कर्ज करता है। अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया थीम है और मोटिव है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते कि थीम और मोटिव में फ़र्क क्या है। ये दोनों ही थीम और मोटिव, ये दोनों ही थीम और मोटिव, ये लिटरेचर के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं देखा जाए तो, लेकिन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हम। मेन सिंपल और क्लियर डिफरेंस ये है कि थीम जो है ना, एक लिटरेरी वर्क का सेंट्रल आइडिया कह सकते हो आप, या मैसेज होता है जो पूरे प्ले में, नॉवल में, पोएम में, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके दौरान डेवलप होता है। हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई थीम डेवलप होता है। थीम वो बड़ा सवाल होता है जिसका जवाब पूरे प्ले में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि मोटिव जो है, ये एक रिकरिंग सिंबल है या फ्रेज़ है, एक ऐसी इमेज है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा आइडिया है जो किसी थीम को हाईलाइट करता है या उसका पूरा सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। मोटिव एक बार बार आने वाला सिग्नल है जो थीम को सपोर्ट करता है, उसको मजबूती देता है, मतलब फाउंडेशन देता है उसको। हाँ, तो बैक टू दिस टॉपिक, थीम हो गया ये पेरेंटल ब्लाइंडनेस हमने पढ़ा। लियर की तरह ग्लॉसेस्टर को भी पेरेंटल ब्लाइंडनेस है। ये अपीयरेंस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना कि रियलिटी पर। मोटिव ये कि नेचर, एडमंड डिक्लेयर कर देता है नेचर एज हिज गुडनेस, कि ये जो इसका जो नेचर है, जो ये प्रिटेंड कर रहा है, वही, ये जो इसकी गुडनेस है वही इसका नेचर है। स्टार्स एंड फेट,
रिजेक्ट्स बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी। ये कहते भी हैं कि ऑल विथ मी इज मीट दैट आई कैन फैशन फिट। तो यहाँ पर हमको ये अगर हम मोटिव्स को डिस्कस करें तो जो ये पहला है नेचर, ये एक तरह का ये कंट्रास्ट है बिटवीन नेचुरल एंड अननेचुरल। जैसे इसमें एक एडमंड की डिक्लेरेशन भी है, दाउ नेचर आर्ट माई गुडनेस। ये बिल्कुल शुरू में ही आप सीन 2 जब पढ़ेंगे, बिल्कुल पहली लाइन है जो ये एडमंड बोलता है, दाउ नेचर आर्ट माई गुडनेस। तो हेयर ही रिजेक्ट्स द लॉज ऑफ सोसाइटी and embraces a brutal idea of naturalism where might is right, जिसके पास ताकत है वो ही ठीक है। His belief in nature is self-serving contrast sharply with social order in which Lear tries to maintain. So यहाँ पर ये अपना नेचर यानी कि अपनी माइट को ही अपनी गुडनेस बता रहा है। सेकंड जो ये हमने पढ़ा है स्टार एंड फेट, तो यहाँ पर ये रेफरेंस है एस्ट्रोलॉजी का, फेट का, स्टार्स का। मतलब यहाँ पर ग्लॉसेस्टर जो है वो स्टार्स को ब्लेम करते हैं। मतलब जो ग्लॉसेस्टर है वो तो फेट में मान रहा है कि भाई हाँ ये फेट है हमारी, ये मतलब ये स्टार्स की गलतियाँ हैं कि इस तरह का हुआ। मतलब किस्मत पर दोष दे रहा है वो कि किस्मत ऐसी थी जो तुम्हारे साथ गलत हुआ। लेकिन एडमंड इस बिलीफ को वो रिजेक्ट करता है। ही मोक्स दिस बिलीफ इन फेट, asserting that men shape their own destiny। ये लाइन जो बोलता है ना वो all with me's meet that I can fashion it, वो यही कह रहा है कि आदमी जो है, इंसान जो है अपने डेस्टिनी खुद शेप करता है। मतलब यहाँ पर आप सीन 2 में आप देखेंगे कि जो ये एडमंड है ये काफ़ी सारी सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट करता है, उन्हें चैलेंज करता है बेसिकली। अब ये कुछ डायलॉग्स हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, ये आपको सीन 2 में मिल जाएंगे। जैसे ये सबसे पहली लाइन है, दाउ नेचर आर्ट माई गुडनेस, ये बिल्कुल पहली लाइन है। इसमें आगे ये कि दाउ नेचर आर्ट माई गुडनेस, टू दाई लॉ माई सर्विसेज आर बाउंड, वेयर फोर शुड आई स्टैंड इन द प्लेग ऑफ कस्टम एंड परमिट। सो ये ना यहाँ पर एडमंड का सोलिलोकी है। ये अपनी सोलिलोकी स्टार्ट करता है, वो कहता है कि उसका गुडनेस उसकी नेचर है, यानी कि उसकी जो गुडनेस है ना उसकी नेचर है। यानी वो सोसाइटी के लॉ को, जो कानून है, नॉर्म्स हैं बेसिकली, मोरालिटी को, फैमिली वैल्यूज़ को वो नहीं मानता। वो सिर्फ नेचुरल इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ही मानता है। ही पोजिशंस हिमसेल्फ एज बियॉन्ड सोशल कन्वेंशंस। वो कहता है, ये पूरा, ये तो सिर्फ एक ही लाइन है, पूरा जो इसका ये डायलॉग है काफ़ी, ये है ऑलमोस्ट 20 लाइन्स की इसकी ये बात है, काफ़ी बड़ी, जिसमें ये कहता है कि मतलब ही पोजिशंस हिमसेल्फ एज बियॉन्ड सोशल कन्वेंशंस, क्योंकि सोसाइटी ने उसे बास्टर्ड कहकर रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो लेजिटिमेट नहीं है ना, वो लेजिटिमेट नहीं है। जैसे इसमें ये लाइन है इसमें, फॉर दैट आई एम सम 12 or 14 मून शाइन्स लैग ऑफ अ ब्रदर, वाई बास्टर्ड, वेयर फॉर बेस व्हेन माई डायमेंशंस आर एज वेल कॉम्पैक्ट। आप ये टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा बहुत ईजीली। ये 1 से लेकर 20 तक है सीन 2 में। तो ही पोजिशंस हिमसेल्फ एज बियॉन्ड सोशल कन्वेंशंस, क्योंकि सोसाइटी ने उसको बास्टर्ड कह के रिजेक्ट किया है, तो वो सोसाइटी के नॉर्म्स को रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि मेरी वर्थ, मेरी माइट ही मेरी गुडनेस है, यही मेरा नेचर है। यहाँ पर हमें एक थीम देखने को मिलता है, नेचर्स वर्सेस सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन ही तो है कि जो इन द वेटलॉक बच्चा हुआ है वो लेजिटिमेट है, जो आउट ऑफ वेटलॉक बच्चा हुआ है वो इलेजिटिमेट है, जो सोसाइटी के हिसाब से है वो अच्छा है, जो सोसाइटी के हिसाब से नहीं है वो गलत है। सोसाइटी में यही तो रूल्स होते हैं।
लेकिन ये जिसके साथ होता है उसको तो बुरा लगता है ना, अब इसके साथ हुआ है, बचपन से इसको बास्टर्ड कहा गया है, तो इसके लिए बुरा है। तो यहाँ पर नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन की थीम है, इलेजिटिमेसी एंड सोशल इनजस्टिस की बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये जो एडमंड एंटर हुआ इस प्ले में, यहाँ पर इसकी दो चीज़ें दिखती है, इसका एम्बिशन कि एडगर को बिल्कुल साइड लाइन कर देना है, उसको बिल्कुल बर्बाद कर देना है, ग्लॉसेस्टर से भी बदला ही लेना है इसको, और उसकी पोजीशन भी चाहिए इसको किंग लियर के कोर्ट में, जो अर्ल का जो ये इसके पास पोजीशन है ग्लॉसेस्टर की, ये भी इसको चाहिए। और ये रिबिलियन भी है काफ़ी, मोटिव यहाँ पर नेचर है और रिबिलियन है। ये जो लाइन है ये वाली, मतलब यहाँ से जो पूरा डायलॉग इसका है, ये एडमंड के अंदर के रिबेलियस कैरेक्टर को दिखाता है कि ये कितना रिबेल है, जो दुनिया के नियम को नहीं मानता, अपनी सोच के अपने नियम अपनी सोच के हिसाब से ही चलता है। इसी डायलॉग में एक और लाइन है, वाई बास्टर्ड वेयर फॉर बेस, ये भी एडमंड ने ही बोला है। ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, एडमंड यहाँ पूछ रहा है कि क्या मैं कमज़ोर हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक इलेजिटिमेट सन हूँ, मतलब मेरी जो वर्थ है, मेरी जो पावर है वो इसीलिए ही है, मतलब वो इसलिए मैं कमज़ोर हूँ सोसाइटी में क्योंकि मैं लेजिटिमेट नहीं हूँ। तो क्या यही मेरी मतलब मैं इसलिए कमज़ोर हूँ क्या? मतलब वो इस लेबल को, ये जो इलेजिटिमेट होने का जो ये एक लेबल है उस पर, वो इस लेबल को चैलेंज करता है और यही उसके रिजेंटमेंट का सोर्स है। तो यहाँ पर हमें ये कुछ थीम्स इस लाइन के थ्रू पता चलती है कि यहाँ पर सोशल इनजस्टिस हुआ है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ है यहाँ पर, मतलब ये समाज से उसका सवाल है कि जन्म का दोष उसकी एबिलिटी से बड़ा क्यों माना गया है। आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे ना, देखिए आंसर जो हम लिखते हैं तो हमें सिर्फ समरी नहीं लिखनी होती है कि हमने पूरा कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर दिया और हमने समरी लिखा, क्लाइमेक्स लिखा, हो गया, नहीं। हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह के रेफरेंसेस अपने आंसर में डालने होते हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी और इट इज़ बीए और एमए। तरीका यही है एक सही आंसर लिखने का, मतलब बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट यू नीड टू ऐड रेफरेंसेस, तभी तो पता चलेगा कि आपने पढ़ाई कैसे की है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट भी हैं, अगर आप मास्टर्स इंग्लिश स्टूडेंट भी हैं, या आप यूपीएससी इंग्लिश ऑप्शनल आपका मेंस पेपर है, तो आप समरी नहीं कोई आपसे जानना चाहता। जो एग्जामिनर है, जो आपका आंसर पढ़ने वाला है, वो ये सिर्फ जानना चाहता है कि आपने कितना डीपली पढ़ा है, आपने इस लिटरेचर को कैसे समझा है। लिटरेचर सिर्फ वो नहीं होता कि ऑथर ने क्या कह दिया, या पोएट ने क्या कह दिया, या प्ले राइट ने क्या कह दिया। इट इज़ बियॉन्ड दैट कि आपने उसको कैसे समझा, आपने उसको कैसे लिया, कैसे उसको ज्यूम किया, कैसे कंज्यूम किया उसको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थर्ड पर जाते हैं। ये इसमें 16 नंबर की लाइन है, ये सेम डायलॉग में, लेजिटिमेट एडगर आई मस्ट लेजिटिमेट एडगर आई मस्ट हैव योर लैंड। ये भी एडमंड नहीं बोला है। तो एडमंड अपने प्लान का क्लियर डिक्लेरेशन करता है कि वो एडगर को उसकी ज़मीन और उसके स्टेटस से हटाना पड़ता है। एक्चुअली होता ये है कि जब ये सीन 2 चालू होता है ना, तो एडमंड आता है स्टेज पर और ये वो पूरी बात बोलता है ऑडियंस से। जब इसकी बात ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ग्लॉसेस्टर आता है, मतलब इसने आते ही ना ऑडियंस को अपना पूरा प्लान क्लियर कर दिया है कि इसकी इंटेंशन सही नहीं है, ये बहुत रिबिलियस है, रिबेल करेगा ये, और आते ही इसने सोसाइटी पर क्वेश्चन कर दिया है। तो ये जो पूरी लाइन है ना यहाँ पर, ये जितना भी इसकी 20, 21, 22 लाइन्स हैं इसकी, ये एक तरह ये इसमें इसने ऑडियंस से बात की, इसने किसी कैरेक्टर से बात नहीं की। नहीं तो आते क्यों बताएगा ये कि भाई मेरा तो ये प्लान है, वहाँ कोई भी नहीं है प्ले में, ये ऑडियंस से बोल रहा है। यहाँ पर ये अपने प्लान का क्लियर डिक्लेरेशन करता है कि एडगर को, मतलब लेजिटिमेट एडगर तो लेजिटिमेट है ना, उसको ये कह रहा है कि एडगर को उसकी ज़मीन और उसके स्टेटस से हटाना है। आई मस्ट हैव योर लैंड। लैंड यहाँ पर उसका पोजीशन है,
जो सोसाइटी में उसकी पोजीशन है और उसकी जो उसके फादर की लाइफ में एडगर की जो पोजीशन है, उससे उसको हटाना है। उसको कोई ऐसे एनवी भी नहीं है एडगर से ही डजेंट है जस्ट एनवी एडगर, बट ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस हिम, उसको बस हटाना है। तो यहाँ पर हमें इसका थीम वही है, एम्बिशन हमें दिख रहा है, बिट्रायल दिख रहा है। मतलब ये जो लाइन है ना, लेजिटिमेट एडगर आई मस्ट हैव योर लैंड, ये लाइन उसके इंटेंशंस की डिक्लेरेशन है। वो एडगर में अपना भाई नहीं देखता है, वो सिर्फ उसको एक राइवल है तो वो उसका भाई ही, लेकिन वो उसको अपना ब्रदर नहीं देख रहा है, उसको अपने राइवल की तरह देख रहा है। अब ये जो नेक्स्ट डायलॉग है ये भी एडमंड का ही है। ये भी एडमंड का ही है ये वाला डायलॉग भी, लेकिन ये बिल्कुल एंड का है, जब एडगर भी चला जाता है, ग्लॉसेस्टर भी चला जाता है, फिर से ये एडमंड जो है ये ऑडियंस से बात करता है। अ क्रेडुलस फादर एंड अ ब्रदर नोबल whose nature is so far from doing harms that he suspects none. इसका आगे का है on whose foolish honesty my practices ride easy. I see the business, let me, if not by worth, have lends by wit, all with me meets that I can fashion it. इस लाइन को तो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, all with me means meet that I can fashion it. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये बिल्कुल एंड की है, ये आपको 175 से लेकर 180 में मिल जाएगा। यहाँ पर अ क्रेडुलस फादर, जो क्रेडुलस फादर बोला गया, क्रेडुलस का मतलब वो होता है, क्रेडुलस एक ऐसा इंसान होता है जो जल्दी से दूसरों की बात पे यकीन कर लेता है। तो जो क्रेडुलस वर्ड है ये यहाँ पर ब्लाइंडनेस की थीम को रिप्रेजेंट करता है, कि ये कहता है कि अ क्रेडुलस फादर एंड अ ब्रदर नोबल, मतलब एडमंड लियर जैसा ही है, सॉरी कि ग्लॉसेस्टर लियर जैसा ही है ब्लाइंड, और उसकी ब्लाइंडनेस का फ़ायदा कौन उठाएगा, एडमंड उठाएगा। वो कह रहा है कि मेरे जो फादर हैं वो तो बड़े ही बेवकूफ़ हैं, क्रेडुलस हैं, मतलब इजीली मेरी बातों में आ गए, और मेरा भाई काफ़ी नॉबल है, मतलब इतना भोला है कि शक भी नहीं करेगा मुझ पर। तो ये जो लाइन है ना ये उसकी मैनिपुलेशन की एक डार्क कमेंट्री है, जो इनोसेंस को स्टुपिडिटी मानता है। नॉबल कहकर वो उसे भोला भाला कह रहा है, भोला भाला कहकर वो उसे बेवकूफ़ कह रहा है। मतलब ये उसके मैनिपुलेशन का एक डार्क साइड है, जो इनोसेंस को, कोई अगर भोला है तो उसको स्टुपिड समझ रहा है, उसकी फुलिशनेस समझ रहा है। ये कह रहे हैं ना, क्रेडुलस फादर एंड अ ब्रदर नोबल हुज नेचर इज सो फार फ्रॉम डूइंग हार्म्स दैट ही सस्पेक्ट्स नन, मतलब वो तो शक भी नहीं करेगा मुझ पर कि भाई मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्लाइंडनेस सिंबॉलिक है, डिसेप्शन वर्सेस ट्रस्ट की यहाँ पर थीम रिप्रेजेंट होती है, मतलब ये दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं इस पर अलग अलग, लेकिन ये इन्हें डिसेप्ट करेगा, डिसेप्शन देगा। फैमिली बिट्रायल है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जहाँ लियर अपने वफादार केंट और कॉर्डेलिया को पहचान नहीं पाता, वहीं सब प्लॉट में ग्लॉसेस्टर भी एडमंड के झूठ का शिकार हो जाता है। तो ये सीन एडमंड की साइकोलॉजी और प्लॉटिंग को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर दिखते हैं, एडमंड, ग्लॉसेस्टर और एडगर का भी है यहाँ पर। जैसे ये एडमंड है, ये काफ़ी क्लेवर है, एम्बिशियस है, मॉरली करप्ट है। ग्लॉसेस्टर नाइव है, बहुत जल्दी जज कर लिया, ये बिल्कुल लियर जैसा है। इस सीन 2 में पैरेलल प्लॉट शुरू हो गया है एडमंड ग्लॉसेस्टर का, मतलब जैसे लियर और गॉनेरिल का हुआ था ना, सिमिलरली ग्लॉसेस्टर और एडमंड। अब यहाँ पर लियर फर्स्ट सीन में जहाँ था वहीं पर ही ग्लॉसेस्टर है, जहाँ पर ये गॉनेरिल थी, ये जहाँ पर गॉनेरिल थी वहीं पर ये एडमंड है, और जहाँ पर वो कॉर्डेलिया थी
जिसको इन्होंने विक्टिम बनाया, उसकी जगह पर एडगर है। ठीक है, अब सीन थ्री गॉनेरल के पैलेस में है। यहाँ पर इसको डिसरिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है। सो प्लॉट इज़ अबाउट Lear is now staying at Goneril's palace with his soldiers. Goneril is irritated by Lear's behavior and his 100 knights. King है, knights तो होंगे ही. She instructs her steward Oswald to treat Lear with less respect. वो बकायदा ऑसवर्ल्ड को इंस्ट्रक्ट करती है कि मेरे जो फादर हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी है, इनसे जितना पॉसिबल हो उतना ही रूड बिहेव रखना है. सो दिस इज़ ड्यू टू दिस Lear becomes agitated, feels humiliated and suspects Goneril of betrayal कि मुझे तो Goneril ने बड़ा धोखा दे दिया है, उसको लगता है. तो यहाँ पर थीम ये है इनग्रेटिट्यूड है. Lear begins to experience द betrayal by his own daughter कि वो शुरू में तो उसने बड़ी सारी एग्जैजरेटिंग ऑफरिंग की थी उसने, मतलब उसको प्रेज़ किया था, इतना एग्जैजरेटिंग वे में प्रेज़ किया था कि वो कितना प्यार करती है अपने फादर को. अभी तो ऐसा नहीं है, तो उसे इनग्रैटिट्यूड फील यहाँ पर होता है. लॉस ऑफ पावर एंड रिस्पेक्ट, यहाँ पर लियर को शुरू हो जाता है. द बिगनिंग ऑफ लियर सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिक्लाइन कि अब उसकी कोई सुन नहीं रहा. एक नौकर ही तो है ऑसवर्ल्ड, वो उसको ऐसे लेस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा है. तो यहाँ पर देखने को मिलता है. मोटिव्स यहाँ पर है नाइट्स के बारे में कि वो रिप्रेजेंट करते हैं लियर का स्टेटस, कि अभी भी लियर के पास पावर नहीं है लेकिन उसका स्टेटस ये है कि भाई उसके पास 100 नाइट्स हैं और ये यहीं पर ही उसका जो उसका फॉल है उसको सिंबलाइज किया गया है. और जब वो गोनेरिल ऑसवर्ल्ड को इंस्ट्रक्ट करती है तो वो डिसरिस्पेक्ट है टूवर्ड्स हर फादर. तो यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट मार्क करती है लियर के स्लो लॉस ऑफ डिग्निटी को, कि धीरे धीरे उसकी डिग्निटी जा रही है. अब देखिए एक्ट 1 सीन 3 बहुत छोटा सीन है लेकिन इसमें एक इमोशनल शिफ्ट होती है. इमोशनल शिफ्टिंग है इसमें जो लियर के डाउनफॉल की बिगिनिंग बन जाती है. ये सीन मेजरली गोनेरिल और उसके स्टीवर्ड ऑसवर्ल्ड के बीच होता है और लियर के खिलाफ पहली ओपनली हॉस्टाइल प्लानिंग दिखाई जाती है इसमें. यहाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जिसको मैं यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट है ये, बाय डे एंड नाइट ही रॉन्ग्स मी एवरी आवर, he flashes into one gross crime or other that sets us all at odds. I will not endure it. His nights grows righteous and himself upbraids us on every little. ये बिल्कुल शुरू में आपको मिल जाएगा, ये 3 to 10 लाइन्स के बीच में आपको ये मिल जाएगा. ये एक्चुअली पूरा डायलॉग है ये, और ये उसके बिल्कुल तुरंत बाद वाला है और फिर उसके जस्ट नेक्स्ट वाला ये है. तो ये 3 डायलॉग्स हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ये जो पहला है, बाय डे एंड नाइट ही रॉन्ग्स मी एवरी आवर, ही फ्लैशेस इनटू वन ग्रॉस क्राइम और अदर. तो गोनेरिल लियर के बिहेवियर को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि दिन रात वो मुझे गलत ट्रीट करते हैं, पर ये ओवर स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ किया नहीं है लियर ने. ये एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जिससे वो अपने क्रूअल इंटेंशंस को वैलिड दिखाना चाहती है. जैसे इंसान अक्सर करता है कि उसको कुछ गलत करने का मन होता है तो वो कुछ ऐसे ही मतलब बहाने लगाता है कि भाई वो मुझे दिन रात तंग करते हैं, बाय डे एंड नाइट ही रॉन्ग्स मी, वो मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो अब जो मैं करूँगी वो ठीक है. मतलब उसकी अपनी इंटेंशंस गलत है लेकिन वो उनको वैलिड दिखाना चाहती है ये बात बोलकर, बाय डे एंड नाइट ही रॉन्ग्स मी एवरी आवर, ही फ्लैशेस इनटू वन ग्रॉस क्राइम और अदर. तो ऐसा कह के वो अपनी क्रूअल इंटेंशंस को वैलिड दिखा रही है. तो यहाँ पर हमें ये थीम देखने को मिलता है कि ये इनग्रैटिट्यूड है, अपने फादर से झूठ बोलकर आधी प्रॉपर्टी ले ली, अब इनग्रैटिट्यूड शो हो रहा है. और पावर वर्सेस पावरलेसनेस को यहाँ पर शो करता है. यही गोनेरिल बहुत ज़्यादा फ्लैटनिंग बातें करती थी जब इसके फादर के पास पावर थी,
यही बेटी सेम बेटी है, अपने उसी सेम फादर के लिए अब उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पावर नहीं है। यहाँ मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है कि वो मैनिपुलेटिव टैक्टिक यूज़ करती है, जिससे कि वो अपने ये बात बोलकर एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक यूज़ कर रही है, जिससे वो अपने क्रूअल इंटेंशंस को वैलिड दिखाती है। मोटिव ये कि डिसेप्शन यहाँ पर भी है। डिसेप्शन मतलब धोखा, तो यहाँ पर भी है। अब गोनेरिल अपने फादर को धोखा दे रही है। और पेरेंट चाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब यहाँ एक बेटी अपने ही फादर के अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेलती है, रणनीति प्लान करती है, जहाँ वो अपनी ड्यूटीज़ के जगह राजनीति को कर रही है, मतलब पॉलिटिक्स को कर रही है। नेक्स्ट है हिज नाइट्स ग्रो राइटियस एंड हिमसेल्फ अपब्रेड्स अस ऑन एवरी ट्रिफल। तो ये गॉनरेल लियर के फॉलोअर्स के खिलाफ, जो उसके साथ उसके 100 नाइट्स आए ना, उनकी कंप्लेंट कर रही है। वो कहती है कि उनके नाइट्स तो बहुत बदतमीज़ हो गए हैं, ये बदतमीज़ हो गए हैं काफ़ी, मतलब रिबेलियस हो गए हैं काफ़ी। और लियर जो है हर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। इस लाइन का पर्पस है कि लियर के कोर्ट को डेंजरस और डिसऑर्डरली दिखाना है, ताकि वो उसका कंट्रोल कम कर सके। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर और कियोस दिखता है, और जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी दिखता है। ठीक है, तो गॉनरेल यहाँ एक किंग के अगेंस्ट उसी की कोर्ट में उसको कमज़ोर उसे कमज़ोर बना रही है। मतलब ये पैलेस है तो उसी का ही ना, किंग लियर का, लेकिन अब वो गॉनरेल का हो गया है, तो वह उसी को, मतलब उसी के ही पैलेस में, उसी के किंगडम में उसी के अगेंस्ट चीज़ें प्लान कर रही है, उसको कमज़ोर बना रही है। नेक्स्ट है पुट ऑन वॉट वेरी नेग्लिजेंस यू प्लीज़। ये भी आपको लाइन नंबर 12 से मतलब कुछ 15 तक ये लाइंस हैं। ये ऑसवर्ल्ड से कहती है ये कि पुट ऑन वॉट वेरी नेग्लिजेंस यू प्लीज़ you and your fellows. I would have it come to question if he distaste it, let him to my sister. मतलब जाने तो मेरी बहन के पास, अगर यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आता है तो, डिस्टेस्ट लगता है तो। whose mind and mine I know in that are one. वो ये भी कहती कि उसका माइंड और मेरा माइंड दोनों एक ही सेम है। not to be overruled an idle old man. ये अपने फादर को एन आइडल ओल्ड मैन भी कहती कि कैसा आदमी जो बुढ़ा हो गया अब, और अब वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ इन लाइंस के थ्रू गॉनरेल ऑसवर्ड को कहती है कि लियर के साथ अब इंटेंशनली बदतमीज़ी से पेश आओ, ताकि उन्हें इंसल्ट का एहसास हो। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो ये गॉनरेल अपने फादर के अगेंस्ट कर रही है। शी वॉन्ट्स टू प्रोवोक लियर, कि वो कह रही है ऑसवर्ड से कि तुम इनसे जानबूझ कर बदतमीज़ी करो, ताकि ये मुझसे गुस्सा हो जाए और मेरी बहन के पास चली जाए। So this is psychological warfare. She wants to provoke Lear so he can come irrational, and she gets an excuse to restrict him. तो यहाँ पर पावर प्ले हमें देखने को मिलता है, फैमिली बिट्रायल हमें देखने को मिलता है, डिसरेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ अथॉरिटी, सर्वेंट्स एज एजेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं फॉर इंसल्टिंग समवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये मोटिव है एक्चुअली कि यूज़ ऑफ सर्वेंट्स एज एजेंट्स ऑफ इंसल्ट। तो ये लियर के खिलाफ एक प्लान्ड अपमान किया जा रहा है, एक मतलब उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जिसमें ऑसवर्ल्ड जैसे नौकर भी एज अ पॉलिटिकल वेपन बनकर यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब उनको, ऑसवर्ल्ड क्या है, एक नौकर ही तो है, उसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर रही है ये गॉनरेल अगेंस्ट हर फादर टू ह्यूमिलेट हिम। सो ये जो सीन 3 है ना, ये काफ़ी छोटा है, लेकिन ये लियर का पहला इंसल्ट डोमेस्टिक स्पेस में होता है यहाँ पर, मतलब गॉनरेल के घर में, गॉनरेल के पैलेस में। इस सीन में पावर डायनामिक्स को हम पलटते देख रहे हैं। जैसे लियर जो है अब गेस्ट है, और उसके जो थैंकलेस बच्चे हैं अब होस्ट बन गए हैं। पहले उल्टा था,
लियर होस्ट था और इसके थैंकलेस बच्चे वो गेस्ट थे, लेकिन अब ये उल्टा हो गया। तो मतलब पावर डायनामिक्स में चेंजेस आ गए हैं, एक्सचेंज हो गया। सो दिस सीन, द थर्ड सीन शोज हाउ एक्सटर्नल disrespect starts affecting Lear internally and foreshadows his psychological unraveling. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कैरेक्टर्स का इंसाइट देखने को मिलता है। गॉनोरेल कोल्ड हो गई है, काफ़ी कंट्रोल कर रही है अपने फादर को, अनअपोलोजेटिक है, इंटेंशनली बदतमीज़ी कर रही है और करवा रही है अपने फादर के लिए। लियर स्टिल क्लिंगिंग टू अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी जा चुकी है, पावर जा चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी अथॉरिटी से क्लिंग है, बट फीलिंग पावरलेस, धीरे धीरे उनको पावरलेस फील हो रहा है। अब सीन 4 की बात करें, यहाँ पर फिर से हम मतलब गॉनोरिल का पैलेस में यही भी यहाँ पर एंटर कर जाता है फूल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लॉट, तो लियर स्ट्राइक्स ऑसवर्ल्ड offended by his disrespect. Kent, now disguised as a commoner, case enters and is taken to Lear's service. अब ये केंट भी डिस्गाइज होके आ गया है, फूल भी यहाँ पहुँच गया है, और उसके रिडल्स एंड हिज जोक्स हाइड ब्रूटल ट्रूथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। इसमें बड़ी सारी बातें हैं जो फूल बोलता है अपने रिडल्स और अपने जोक्स के थ्रू, जो कि ब्रूटल ट्रूथ को रिप्रेजेंट भी करता है। गॉनोरेल डिमांड्स लियर टू रिड्यूस हिज फॉलोअर्स। वो कहती है कि आपके जो इतने 100 नाइट्स, इनका आपको क्या ही काम है, इन्हें आधे कर दो। लियर कर्सेस हर एंड डिसाइड्स टू गो टू रीगन। सो थीम यहाँ पर है फुलिशनेस एंड विजडम, मतलब फूल इज़ वाइजर देन द किंग। फुलिशनेस और विजडम, वैसे देखा जाए तो ये लियर होना चाहिए और ये फूल का करेक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो एक्चुअली फुलिश है वो लियर है, और जो एक्चुअल में विजडम है जिसके पास, वो फूल है। फूल करेक्टर जो जेस्टर है किंग लियर के कोर्ट में, तो फूल इज़ वाइजर देन द किंग। आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब यहाँ पर उसके पास पावर चली गई, गॉनोरिल ने उसके साथ मिसबिहेव करना चालू कर दिया, उसको बोल दिया कि भाई अपने नाइट्स हाफ कर लो, बहुत सारी और भी चीज़ें बोली उसको। तो हेयर लियर बिगिंस टू रियलाइज हिज मिस्टेक। लॉयल्टी वर्सेस बिट्रायल यहाँ देखने को मिलता है। जो शुरू में जिसको किंग लियर ने बैनिश किया कि भाई ये मुझसे लॉयल नहीं है, केंट को, वो बल्कि उससे लॉयल है। जिसको बैनिश किया वो उससे लॉयल है, और जिसको उसने आधी किंगडम अपनी दे दी गॉनोरिल को कि ये मुझसे लॉयल है ऐसा समझ के, वो एक्चुअली में बिट्रे कर रही है। मोटिव यहाँ पर यह है कि डिस्गाइज, केंट की हिडन आइडेंटिटी यहाँ पे हमें मिलती है। जेस्टर के ट्रुथ, मतलब द फूल स्पीक्स पेनफुल विजडम। तो ये कुछ कोड्स हैं, हम इनको देखते हैं, मतलब ये डायलॉग्स हैं ये इस प्ले में, आप देख सकते हैं बुक्स टेक्स्ट में भी। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला, फूल जब एंटर करता है, बिल्कुल जैसे शुरू में क्या होता है, जब ये सीन 4 शुरू होता है तो केंट का डायलॉग होता है जब ये डिस्गाइज करके आता है। उसके बाद कुछ आवाज़ें आती हैं और लियर और उसके नाइट्स एंटर करते हैं। साथ ही में जो फूल है वो भी एंटर करता है। एक्चुअली होता ये है कि सीन 4 में केंट आता है, केंट और लियर दोनों बात करते हैं, केंट डिस्गाइज्ड है। उसके बाद इसके कुछ नाइट्स आते हैं, फिर ऑसवर्ल्ड आता है, और ऑसवर्ल्ड बात पर किंग लियर को उनके साथ मिसबिहेव करता है। तो वो उसको बोलता भी है कि तुम मुझे जानती नहीं, और जो भी उसको मतलब गुस्सा आता है। तो ऑसवर्ल्ड जो है वो इतना मतलब उसको इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देता है। तभी उसी के बाद फूल आता है, और पहला डायलॉग उसका होता है, लेट मी हायर हिम टू हेयर्स माई कॉक्स कॉम्ब। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डीप थिंकिंग कोट है ये लाइन फूल
लियर के कोर्ट में एंट्री के बाद बोलता है जब केंट डिस्गाइज में लियर का फॉलोअर बन गया था, द फूल अपना कॉक्सकॉम, कॉक्सकॉम एक जोकर का हैट होता है, वो केंट को ऑफर करता है, ये मतलब लेट मी हायर हिम टू, हेयर्स माई कॉक्सकॉम, मतलब वो केंट के लिए बोलता है कि मैं इसको हायर कर लेता हूँ, ये मेरा कॉक्सकॉम है। मतलब वो एक तरह का हैट होता है कॉक्सकॉम। तो ये उसको फूल अपना जो कॉक्सकॉम है वो केंट को ऑफ़र देते हुए कहता है। तो कॉक्सकॉम को देना यहाँ पे काफ़ी सिंबॉलिक है। फूल का इस लाइन से मतलब ये है कि फूल ये कह रहा है कि अगर लियर की सर्विस में आना है तो बेवकूफ़ तो बनना पड़ेगा। इसको मैं एक और तरीके से समझाती हूँ। केंट जो है वो डिस्गाइज होकर आया है और वो किंग लियर की सर्विस में आना चाहता है। तो यहाँ पर जो ये फूल है ये अपना कॉक्सकॉम देकर कहता है कि मैं एक फूल हूँ ना, तुम मेरा कॉक्सकॉम लो, अगर तुम किंग लियर की सर्विस में आना चाहते हो तो तुमको बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। मतलब ये जितने भी लोग हैं ये सब बेवकूफ़ हैं। ये कॉमिक मोमेंट भी है देखा जाए तो, लेकिन इसका डीप सेटरिकल मीनिंग भी है। फूल इज़ वाइजर देन अदर्स, वो लियर को इनडायरेक्टली बताता है कि जिस तरह लियर ने अपने किंगडम को बांट दिया, मतलब जिस बेसिस पर उसने अपने किंगडम को बांट दिया उसमें फुलिशनेस थी। तो यहाँ पर एक मोटिव हमें जानने को मिलता है, फुलिशनेस वर्सेस विजडम। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना ये आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी 96 सीन 4 में, 96 95 इसके आसपास। मतलब ये बहुत बड़ी बात है ये कि एक फूल कह रहा है कि अगर तुम्हें मेरे राजा की सर्विस में आना है तो तुम्हें बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं सब बेवकूफ़ हैं, और किंग लियर ने जो भी जिस तरह से अपनी किंगडम को बांटा है वो बहुत ही बेवकूफ़ भरा एक्शन था। अगला है, दो हैड्स लिटिल विट इन दाई बॉल्ड क्राउन व्हेन दो ग्रेवेस्ट दाई गोल्डन वन अवे। ये भी फूल ने कहा है। फूल जो है फिर से लियर का मजाक उड़ाता है उस डिसीजन पर जो उसने सीन 1 में लिया था, अपना सारा किंगडम गॉनरिल और रीगन को दे दिया और कॉर्डेलिया को उसने बैनिश कर दिया। तो यहाँ पर ये बॉल्ड क्राउन जो है ये लियर का सर है, जो अब जो क्राउन है और क्या बोलते हैं उसको, थ्रोन है जो उसको छोड़ चुका है, मतलब बॉल्ड क्राउन हो चुका है। मतलब लियर का सर है ये, हेड बॉल्ड क्राउन, जो अपना तख्ता छोड़ चुका है, मतलब अपनी पावर को छोड़ चुका है। और ये जो इसमें ये वर्ड है ना गोल्डन वन, इसका मतलब है रियल क्राउन, मतलब पावर। मतलब वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है वो तो कुछ भी नहीं है। रियल क्राउन जो था जिसमें पावर थी, जो गोल्डन वन था, वो तो जा चुका। फूल यहाँ पर कह रहा है कि जब लियर ने अपनी पावर सरेंडर की तब उसके पास लिटिल विट यानी कि समझदारी नहीं थी। लिटिल विट, जब उसने अपनी सारी किंगडम अपनी वो 2 बेटियों को दे दी, ये तो उसका सबसे बड़ा और गलत फैसला था। वो उसने अपनी लिटिल विट यानी कि समझदारी के बिना ये डिसीजन लिया। अब तो उसके सर पे सिर्फ जो भी है वो सब नकली है, क्योंकि उसका जो एक्चुअल क्राउन था, एक्चुअल जो उसकी पावर थी वो तो जा चुकी है। जब ये लियर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी बेटी से, अब उसके नौकर से, उनके बिहेवियर से, तो वो परेशान होकर कहता है कि आई कैन बी पेशेंट, आई कैन स्टे विथ रीगन, आई एंड माई 100 नाइट्स। तो यहाँ पर लियर ने गॉनरिल के रूड बिहेवियर को नोटिस किया है, लेकिन अभी भी वो उससे इमोशनली कट ऑफ नहीं हुआ है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि रीगन भी तो है भी, और उसके दिमाग में अभी भी रीगन है, और वो कह रहा है कि अगर गॉनरिल नहीं चाहती तो वो अपने साथियों को लेकर रीगन के पास चला जाएगा। तो लियर के टोन में अभी भी ईगो और डिनाइल है, अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। उसे लगता है कि रीगन उसे ऑनर देगी, लेकिन
एज ऑडियंस, एज रीडर्स, हमें तो पता है कि दोनों सिस्टर्स की नीयत एक जैसी है. दिस इज आयरनी हियर कि बोथ सिस्टर्स आर वेरी इक्वल टू ईच अदर, दे आर रिजेम्बलेंस ऑफ ईच अदर. तो जैसा बिहेवियर गॉनरिल का रहा है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, मतलब कम तो नहीं होगा, उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही रीगन का होगा. इससे ज़्यादा ही मतलब होगा बुरा. तो यहाँ पर अभी भी ऑडियंस को तो पता ही है कि भाई रीगन उसे कोई ऑनर नहीं देगी. ऑडियंस को पता है कि लियर जो है वो सेल्फ डिसेप्शन में है. वो कह रहा है कि आई कैन बी पेशेंट, लेकिन उसका जो नेचर है वो काफ़ी इम्पल्सिव है. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रुथ्स. अ डॉग मस्ट टू कैनल, he must be whipped out when lady, the brash may stand be the fire and the stink. ये फूल ने कहा है. फूल ने फिर से एक सेट्रिकल अटैक किया है लियर पर. फूल लियर को और डीपली टॉन्ट कर रहा है यहाँ पर. उस सोसाइटी को जहाँ सच बोलने, और वो सोसाइटी को भी टॉन्ट कर रहा है, उस सोसाइटी को जहाँ सच बोलने वाले को सज़ा मिलती है और झूठी तारीफ़ करने वालों को अवार्ड मिलते हैं. तो ट्रुथ्स डॉग, ये सच कहना एक पाप जैसा हो गया है. यहाँ पर ये दिख रहा है कि ट्रुथ्स अ डॉग मस्ट टू कैनल, मतलब सच कहना तो बिल्कुल पाप है, बिल्कुल सिन है, एक नहीं कहो. लेडी द ब्रैश, यहाँ ब्रैश का मतलब है एक फीमेल हुंड, मतलब फूल जो है ना इनडायरेक्टली गॉनल की तरफ इशारा कर रहा है. फूल ये कह रहा है कि सोसाइटी में सच कहने वाले लोग पनिश किए जाते हैं जबकि झूठी फ्लैटरी करने वाले लोग कंफर्ट में रहते हैं. तो ये एक सैटिरिकल अटैक है किस पर, ये गॉनरिल पर. तो यहाँ पर थीम्स कुछ हमें ऐसे दिखते हैं कि करप्शन ऑफ पावर है, मॉरल डीके है, और हमको इस सीन में पहली बार फूल की वॉइस सुनने को, देखने को, पढ़ने को मतलब हमको मिलती है यहाँ पर उसकी वॉइस. नेक्स्ट है लेट मी नॉट बी मैड, नॉट मैड स्वीट हेवन, कीप. यहाँ पर ये लाइन है लेट मी नॉट बी मैड, नॉट मैड स्वीट हेवन, कीप मी इन टेम्पर, आई वुड नॉट बी मैड. ये लियर बोलता है. गॉनरिल ने लियर की अथॉरिटी को चैलेंज किया है. लियर यहाँ पर कंफ्यूज है, हर्ट एंड फ्यूरियस है. उस मोमेंट में वो खुद को संभालने की कोशिश करता है. ये लाइन लियर के इंटरनल इमोशनल ब्रेकडाउन का बिगनिंग है. लेट मी नॉट बी मैड, इसका मतलब है कि वो प्रे करता है कि वो अपना मेंटल बैलेंस ना खोए. तो यहाँ पर ये अपना बैलेंस ना खोए इसके लिए प्रेयर करता है. कीप मी इन टेम्पर, ये सेल्फ कंट्रोल और रीज़न को बनाए रखने की अपील करता है. तो ये लाइन लियर के लेटर बिटनेस का फोर शेडोइंग भी है जो पूरे प्ले का मेजर थीम है. ये यहाँ पर इस लाइन के थ्रू, ये जो ये लाइंस हैं इनके थ्रू ये यहाँ पर इंडिकेशन है कि अगर ये इंसल्ट, ये ह्यूमिलिएशन, ये बिट्रायल अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो किंग लियर पागल हो सकता है, मतलब ये मैडनेस की तरफ जा सकता है, इंसेन हो सकता है. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द होल प्ले. ठीक है, नेक्स्ट है इनग्रेटिट्यूड. दो दाउ मार्बल हार्टेड, more hideous when you more hideous when thou showest thee in a child than a sea monster. ये बिल्कुल ये जो लाइन्स है ये लास्ट में आपको मिल जाएंगी प्ले के. इसका मतलब है इनग्रैटिट्यूड इज़ अ पर्सोनिफाइड एज अ मार्बल हार्टेड फिend, मतलब पत्थर जैसे दिल वाला इंसान, शैतान बल्कि इंसान नहीं. इनग्रैटिट्यूड, लियर को रियलाइज़ हो गया है
कि गॉनरेल ने उसको उसके प्यार और ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया है। गॉनरेल उसका सबसे बड़ा दुख है बेटी का बिट्रायल, मतलब उसकी बेटी ने जो उससे पहले बहुत प्यार दिखाया, उसके अब धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो इनग्रैटिट्यूड ये पर्सोनिफिकेशन है एक ऐसे इंसान के, कहते हैं हम उसको, जिसका इंसान कहते हैं ना तुम्हारा तो दिल बहुत ही पत्थर का है, दो दाओ मार्बल हार्टेड फ्रेंड, मतलब तुम पत्थर दिल इंसान हो। इसको ये मतलब पत्थर दिल इंसान बोल रहा है। जब एक अपना बच्चा ऐसा करता है, वो भी बिट्रायल, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया है। तो लियर कंपेयर करता है कि ये जो इतनी इनसेंसिटिविटी ये मुझे दिखा रही है, ये तो बिल्कुल सी मॉन्स्टर की है। मतलब मोर हाइडियस व्हेन दो शोज दी इन अ चाइल्ड देन अ सी मॉन्स्टर, मतलब ये जो मेरी बेटी है इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ये इतनी इनसेंसिटिव हो गई है मेरे लिए। मतलब ये तो जैसे कोई सी मॉन्स्टर हो या कोई बहुत ही डरावना जानवर भी इतना क्रूअल नहीं हो सकता जितना कि मेरे खुद के बच्चे मेरे लिए, मेरी खुद की बेटी मेरे लिए इतनी क्रूअल है। इतना तो कोई सी मॉन्स्टर भी नहीं हो सकता, इतना तो कोई डरावना भयानक जानवर भी इतना क्रूअल नहीं हो सकता जितना ये मेरी बेटी ने मुझसे किया है। तो यहाँ पर पेरेंटल बिट्रायल का थीम रिफ्लेक्ट होता है, अननेचुरल चिल्ड्रन, ब्रोकन फैमिली टाइज, इनका भी दिखता है। नेक्स्ट लाइन है, ओ स्मॉल फॉल्ट हाउ अगली डिडस्ट दो इन कॉर्डेलिया शो, ये लियर कहता है। ये लाइन भी गॉनरेल के हार्श बिहेवियर के बाद लियर के रिफ्लेक्शन का पार्ट है। लियर यहाँ पर कह रहा है कि कॉर्डेलिया का फॉल्ट तो बहुत छोटा सा था, ओ मोस्ट स्मॉल फॉल्ट, मतलब उसने तो सिर्फ मुझे ये कह दिया था कि मैं ज़्यादा प्यार नहीं करती, मैं बस उतना ही प्यार करती हूँ जितना हमारे बॉन्ड के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। उसकी गलती तो बहुत छोटी थी, सिर्फ उसने मेरी फ्लैटरी तो नहीं की थी, और क्या उसने नहीं किया था, उसने कोई क्राइम थोड़ी कर दिया था, उसने मुझे हार्म थोड़ी किया था, उसने मुझे हर्ट थोड़ी किया था। उसने तो सिर्फ यही बोल दिया था कि वो मतलब वो उतना ही मुझसे प्यार करती जितना उसे करना चाहिए। हाउ अगली डिडस दाओ इन कॉर्डेलिया शो, लेकिन उस वक्त उस छोटी सी बात को लियर ने बहुत बड़ा गुनाह समझा। मतलब उस समय तो इसने बड़ा ही अगली समझा था ना इस बात को, लेकिन अब उसे उसकी वो बात बहुत छोटी दिख रही है, एकदम बहुत छोटी दिख रही है। सो यहाँ पर ब्लाइंडनेस जो कि इमोशनल मिस जजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें देखने को मिलता है। फॉल्स वैल्यूज़ को यहाँ पर लियर अब खुद रियलाइज़ कर रहा है, मतलब अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से अब जब एक बात होती है ना, जब आपको रियलाइज़ हो जाता है ना आपने कुछ गलत किया है, तब से आपको ज़्यादा दुख होता है। जब आपको पता ही नहीं है, आपको रियलाइजेशन ही नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, तब तक फिर भी आप आराम से रहते हो। यहाँ से अब किंग लियर को बहुत बुरा फील होने वाला है। इनटू हर वॉर्म कॉन्वे स्टर्लिटी, लियर कहता है गॉनरेल को, ये बहुत ही कर्स, बहुत बड़ा कर्स है ये। मतलब शेक्सपियर का सबसे इंटेंस और डिस्टर्बिंग कर्सेस में से एक है ये, जितने भी प्लेज उन्होंने लिखे हैं। तो एक्चुअली होता है कि गॉनरेल लियर के नाइट्स के नंबर को कम कर देती है, उसके बिहेवियर में भी इंसल्ट फील होता है लियर को। तो लियर इज़ नाउ सो हर्ट, मतलब इज फीलिंग सो हर्ट कि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। उस हर्ट की वजह से ही कर्सेस हर फर्टिलिटी, हर वॉर्म स्टर्लिटी, ऐसा कह के लियर अपनी ही बेटी को बैरन होने की बददुआ देता है कि इसको कभी कोई चाइल्ड नहीं होगा। सिम्बॉलिकली ये उस नफ़रत को दिखाता है जो अब फादर डॉटर के बीच में आ गई है। मतलब यहाँ पर ये जो थीम है, फैमिली ब्रेक डाउन, रेज, अननेचुरल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, उसको दिखाता है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स कभी भी इस तरह की बात नहीं बोलते हैं, बच्चे चाहे कितने ही बुरे हो नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर लियर बोलता है। तो ये भी एक फैमिली ब्रेक डाउन है, अननेचुरल पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। फूल लियर का कॉन्शियंस है, मॉरल मिरर है ये, जो काम लियर को बोलना चाहिए था, करना चाहिए था, वो फूल कर रहा है। केंट जो है बहुत डिवोटेड है, बेचारा डिस्गाइज होके आ गया है, बहुत लॉयल है वो। लियर जो है अब उसने स्टार्ट कर दिया रेगरेट करना, लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है।
अब हम बात करते हैं सीन 5 की। लियर लीव्स फॉर रीगन, इनर टर्मोइल बिगिंस। तो लियर सेट्स आउट फॉर रीगन्स हाउस होपिंग फॉर सिंपैथी। फूल कंटिन्यूअसली मोकिंग हिम, अभी भी वो मजाक ही उड़ा रहा है इसका, बट हिज वर्ड्स रिफ्लेक्ट लियर स्लो मेंटल deterioration. Lear begins doubting his decision. वो रास्ते में उसको लग रहा है कि भाई हाँ ये जो मैंने किया है तो गलत किया. And the first signs of madness are hinted here. अब जैसे जैसे उसको फील होगा ना, जैसे जैसे उसको रियलाइजेशन होगा कि उसने जो किया गलत किया, वैसे वैसे वो मैड होता चला जाएगा. थीम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा रेग्रेट एंड रिकॉग्निशन. लियर को शुरू हो गया है कॉन्सिक्वेंसेस को फील करना, उसने शुरू कर दिया है. लोनलीनेस हो गई है उसको, आइसोलेशन हो गया है, बहुत ही इमोशनली अबैंडन्ड हो गया है वो. मोटिव्स वही मैडनेस है. लियर फियर्स लूजिंग हिज माइंड. अगर हम वेदर और नेचर की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं लियर की इनर कियोस को कि उसने बहुत बुरा किया. यहाँ पर भी कुछ फेमस डायलॉग्स हैं जो हमको ये लास्ट सीन जो है इस एक्ट का उसमें देखने को मिलते हैं. यहाँ पर जैसे सबसे पहली चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई डिड हर रॉन्ग. लियर ने कहा कॉर्डेलिया के बारे में. Lear reflects on his decision to disown Cordelia after Goneril's betrayal. He is hurt, humiliated, and slowly realizing that Cordelia was truthful. ये लियर का बिल्कुल फर्स्ट मोमेंट है ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रिमोर्स. He begins to acknowledge his error in judgment, short but loaded with emotional weight. ये जो कोट है दैट इट रिफ्लेक्ट्स गिल्ट, लव एंड बिगनिंग ऑफ हिज मोरल एंड साइकोलॉजिकल डाउनफॉल. तो यहाँ पर कुछ थीम हमें इस लाइन से पता चलती है, जैसे गिल्ट और रिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. ट्रुथ वर्सेस फ्लैटरी. पहले भी ट्रुथ वर्सेस फ्लैटरी था, लेकिन तब फ्लैटरी को इम्पोर्टेंस मिली थी, ट्रुथ को पनिशमेंट मिली थी. लेकिन अब यहाँ पर ट्रुथ को इम्पोर्टेंस मिल रही है, फ्लैटरी को तो नहीं मिल रही. लेकिन अभी लियर इज़ नॉट इन द स्टेट टू गिव समवन अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट. ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर. नेक्स्ट है, दो shouldst have not been told, have been old till thou hadst been wise. Fool ने ये बात बोली है. Fool with this characteristic irony tells Lear that age should come after wisdom, implying that Lear has grown old without acquiring true insight. ये इसको एक तरह का ताना मार रहा है ये, लेकिन सच कह रहा है ये कि विजडम जो होती है वो एज के साथ होती है, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है. तुम्हारे पास एज आई, तुम ओल्ड हुए, लेकिन तुम्हारे पास ट्रू इंसाइट नहीं आया, तुम इंसान को पहचान सको, ये वाली एबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है. तो फूल स्पीक्स व्हाट नो वन एल्स डेयर टू से. इट्स अ बिटिंग सटायर. बहुत स्ट्रॉन्ग सटायर है ये कि एक फूल, एक जेस्टर, एक मामूली सा जेस्टर इतनी बड़ी बात बोल रहा है किंग को कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है. स्पीक्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि फूल स्पीक्स व्हाट नो वन एल्स डेयर टू से. दिस मॉक्स लियर्स इमेच्योर डिसीजन ऑफ डिवाइडिंग द किंगडम बेस्ड ऑन फ्लैटरी. ये मॉक जो है ना, ये दिखा रहा है लियर की इमेच्योर डिसीजन को कि उसने फ्लैटरी के बेसिस पर किंगडम का डिवीजन कर दिया. इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द फूल ऑफन स्पीक्स द ट्रूथ मास एज जेस्ट. ये मतलब शेक्सपियर के प्लेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फूल होता है, जो जेस्चर होता है, वही सच बोलता है जोक्स के थ्रू और रिडल्स के थ्रू, लेकिन वही सच बात बोलता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल्स. थीम यहाँ पर है विजडम वर्सेस एज. जैसे इसमें बोला ना इसने कि तुम्हारे पास एज तो आ गई, तुम बूढ़े तो तुम हो गए, लेकिन समझदारी नहीं आई है. मतलब समझदारी नहीं आई है.
फॉली ऑफ पावर, तुम्हारे पास पावर थी लेकिन तुमने उसका बहुत गलत यूज़ किया। आयरनी एंड ट्रुथ, आयरनी ये है कि हम ये भी जानते हैं कि ये जो जिस बेटी के पास जा रहा है वो उतनी ही इक्वली इतनी ही ख़राब है वो भी, लेकिन अभी लियर को पता लगना बाकी है कि वो अब फिर से गलत बेटी के पास जा रहा है। नेक्स्ट है ओ लेट मी नॉट बी मैड स्वीट हेवन, कीप मी इन टेम्पर, आई वुड नॉट बी मैड। ये बिल्कुल सीन 5 के लास्ट के डायलॉग्स हैं, बिल्कुल एंड के। इसमें आफ्टर गॉनरस बिट्रायल एंड द फूल टॉन्ट्स, Lear is on the verge of a breakdown. He senses the onset of madness and pleads for control. This is the cry of desperation. Lear यहाँ पर अपनी mental stability को मतलब उसकी slipping हो रही है ना. He feels his mental stability slipping. A moment of emotional vulnerability. ये जो लाइन है ये फोरशैडो करता है फुल मैडनेस को, कि लियर जो आगे चलकर दिखाने वाला है। ये फिर से एक और इंडिकेशन है, हिंट है। पहले भी एक आया था कि अगर ये जो मैंने जिसमें बोला था कि अगर ये इस तरह का बिहेवियर अगर गॉनरल का चलता रहा तो ये मैड हो जाएगा। ये फिर से एक हिंट है कि लियर विल डिसेंड, मतलब द फुल मैडनेस जो आ जाएगी उसके अंदर इंटू लेटर इन द प्ले, the full madness of Lear will be shown. Or he is still clinging to sanity, power and pride, but they are all weakening. तो यहाँ पर 3 थीम हमें देखने को मिलती है, मैडनेस एंड मेंटल डिक्लाइन, पावरलेसनेस, फियर ऑफ आइसोलेशन। ये तीनों ही चीज़ें लियर में है, आ चुकी है। वो थोड़ा मेंटल डिक्लाइन हो गया उसका, पावरलेस हो गया है वो, और उसको डर भी आइसोलेशन का। तो यहाँ पर भी ये कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लियर है वल्नरेबल है, अब शेकन है, बट स्टिल ब्लाइंड टू द फुल ट्रुथ, अभी पूरी सच्चाई इसको पता नहीं चली है। फूल जो है हार्ट ऑफ द प्लेस विजडम, हिज वर्ड्स आर ब्लेंड ऑफ कॉमेडी एंड डिसअपियर। सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल सीन 5 की बात करें तो ये काफ़ी क्रूशियल है इन लियर्स कैरेक्टर आर्क। हिज मेंटल breakdown begins here. He is torn between pride, remorse and helplessness. फूल का जो रोल है हाईली इम्पॉर्टेंट है। एज अ ट्रूथ टेलर इन डिस्गाइज ही मॉक्स लियर बट ऑल्सो ऑफर्स इमोशनल इंसाइट। ये जो कोट है, दिस वन और ये वाली भी, it reveals themes of wisdom versus age, madness, regret and betrayal. So this is all about Act 1. Act 1 lays the tragic foundation दोनों में ही, मतलब Act 1 में 5 हमको सीन पढ़े हमने। पूरे एक्ट में एक ट्रेजिक फाउंडेशन मिली 2 पैरेलल स्टोरीज़ की, लियर एंड हिज डॉटर्स, और सब प्लॉट में Gloucester and his sons. These stories show how pride, ego, blindness, these qualities of a person can ruin families and kingdoms. जो सीड है इस chaos का, ये इसको बोया जा चुका है। द सीड्स ऑफ द chaos आर सोन नॉट बाय फेट बट बाय ह्यूमन फोली। जैसे हम कहते हैं ना कि क्या ही कर सकते थे, किस्मत में ऐसा ही होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फेट है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो चुकी हैं होंगी, वो कोई फेट की वजह से नहीं है, बल्कि वो ह्यूमन फॉली की वजह से है, कि उस पर प्राइड बहुत है, ईगो बहुत है, ब्लाइंडनेस बहुत है। तो इसी वजह से ये सारी जो भी आज आगे ट्रेजेडी होगी उसका रीज़न यही है, ह्यूमन फॉली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 2 को पढ़ेंगे। थैंक यू।